हाँ भाई। ध्यान रखना सब वकील और आप लोग एक है सर, आप लोगों के खिलाफ फिर आप किसी दबाव में है क्या? सब एक है ना? चलो बढ़ो तो The defense of an accused on trial is a part of sound administration of justice, and those who issue these threats or prevent people from carrying out the normal processes of law are guilty of subverting the system of justice, which is the grossest kind of contempt. In fact, there's a recent judgment of the Supreme Court which has categorically stated that calls given at the Bar Association that law should not take the case of a suspected terrorist or some other accused in a heinous crime is absolutely unprofessional and not correct, unethical. That was on 8th of April morning where I went to Bhatkal. It was for the wedding of my sister-in-law's daughter. The wedding was on 11th, but I had to move for 2 days earlier, so I went on 8th. So 8th, 9th, all these things, I was there itself. On 9th around 7 o'clock, 7:15, around 7:15, I called up to my husband that again next 10th morning was about to come to Bhatkal. So I told him, when are you coming? Then he told me tomorrow morning at around 6 o'clock we are going to leave. We came from the office, he dropped me here, told me, sir, get ready, I will come early morning, and he went. Then I saw in TV9, Kannada, Naushad Kashim ji is murdered. Around 9 o'clock when I was there, I came to know that he was shot. Then I don't know what was my condition over there. Then early morning they told me that he is no more and they are getting him. Then only such things. After coming back only I came to know how it happened. I came to know from my neighbors, friends over here in the locality that they had seen him at such and such time at around 8 o'clock walking in the lane, talking on phone. One of the accused, Dinesh, he is supposed to have put a phone call from Dosa camp to Naushad and lured him to come. Who are you? Why are you attacking me? What do you want? Then attack is started. Attack and he fell down. Fell down here. Then a shot was administered. Bullets were found spread here. And then he was butchered on the back of the head. Butchered on the back of the head by means of hard weapons. After the assault, ran away on that road. Here. He sat like this. Then he got up. Then he went. He wanted to lift. He wanted to. Then he fell and he could not go. Lost all blood. There was a
watchman here. He wanted to prevent. Here he fell. Naushad Qasim ji is such a lawyer. He takes a briefs of some human rights matters, and he was the only person, in the sense in Muslim community, who had the hopes on him. In the sense, here in Mangalore, no such lawyer in Muslim community. In the sense, recent day, they were facing certain problem in the hands of the RSS people or Hindu leaders. Whenever Muslim people being tortured by police or being tortured by these groups or being tortured by the Hindu leaders, they've been approaching this Naushad Qasim ji. He was handling that matter. He was suddenly, immediately, without any fear, he was filing the cases against these police officials and some other Hindu groups also, leaders. One leader of the BJP party in Mulki was murdered in the year 2006, in December. Then there was disturbances. Then in that case, Naushad and myself appeared. It was the beginning of the trouble for Naushad. Several persons are arrested, out of which one Mulki Rafiq and one Atik. The police wanted two, and one this Prasanna, Venkatesh Prasanna, and what is the Shetty? Jayant Shetty. Jayant Shetty were in DCIB. DCI means District Intelligence, DCIB, District Criminal Intelligence Bureau. They were in that. When Mulki was produced in court, Naushad was present. He said, "Sir, these people are going to harm me," to Naushad. Afterwards, Mulki was taken into custody, Atik was taken into custody. Both of them were killed under the guise of encounter death. Then there was an enquiry under the Commission of Enquiry Act. Naushad went with the mother of Atik. Naushad went with the wife of Mulki, and he deposed personally in that matter against this Shetty, Circle Inspector Shetty, Jayant Shetty and Venkatesh Prasanna. They are the respondents in the enquiry. There itself there was a rub between Venkatesh Prasanna and Naushad. How I came to know that he is going to take risky cases was not only like somebody told me something, because I used to take down the drafting, whatever he used to do, whatever work, whatever case he used to do, I used to go to office or sometimes even at home. Sometimes not during only office hours, even sometimes in the home also when clients comes and the cases, and when I used to take that drafting, I come to know what the work he was doing, like why he is doing so deep, why he is going so deep into the case. That was only what he was working for his clients. But when he used to draft, I used to find that this is something very risky what he is putting into his papers. Our senior, that Purushottam Pujari, he never he's always been opposing the police officials. And the same principle we adopted, I and Naushad. And when he files a case, even I or Naushad, what is our principle? We don't talk with these officials. When there is no communication, they will misunderstand that, yes, because of this lawyer, we are facing this problem. Then this will develop with them. They will develop the enmity with the also personally with the lawyers.
Again Venkatesh Prasanna and this Jayanta Shetty arrested Abdul Rashid, they call him as Mulberry, Abdul Rashid and 4 others in March when he is coming from Kasaragod, and then they wanted him for police custody. So Venkatesh Prasanna, after arresting all these persons, he created a story. He is very intelligent in creating stories. He created a story that this Abdul Rashid has come here to Mangalore along with others in order to murder Varun Gandhi and Pramod Mutalik, Sangha Parivar people, leaders. In fact, it is a false complaint. He opposed for police custody. They wanted him for police custody for 15 days. He opposed. Then the magistrate said, you put it in writing that they are going to kill him. He put it in writing, in his own handwriting. He wrote down and gave it to the magistrate. Then the magistrate gave him to only 3 days custody and said in the order, you must question this accused in the presence of Naushad Kashimji, defense counsel. This was the hitch. So he was defending some of the cases which others would have hesitated to defend. So he was certainly a target, not just for certain Hindutva people, but also perhaps for the establishment. He had enemy of department. Department were opposing because when the matter comes, suddenly he was filing the case against the department or some officials. So he had some enemies from the department. Saying I don't mention their name, but we believe that the department was involved in his murder. Yeah, after the incident I came to know that like this thing he himself has told to one of his cousin. After the incident, after so many days, after so much of long time, they came and told me, your husband, he himself has told me that such threats from police. From police are giving him threat and he is going to be killed by police. This is what he told to one of his friends. The murderers of Naushad Kashimji in the present case are the murderers earlier arrested by Venkatesh Prasanna and Jayanta Shetty. At the time on the 6th itself, 6th April, when one court rejected the 15 days custody to the police, those murderers were released on bail. Conspiracy started on the 6th itself by these police officers. They encouraged these murderers to finish off this Naushad Kashimji because he is a hurdle to them, he is an obstacle to them. So it cannot be said that they are not known about the facts. Therefore, I immediately on the morning went to the SP and told him, I suspect these police officers, 4 police officers, and I prepared a complaint and I presented it to the investigating officer. Meanwhile, before I went there, they told me they have already prepared a complaint from one Venkatesha, a contractor who has no business to come there. And in that complaint, they have given a complete go-by to the case. Kashimji is a senior who is not, a Muslim, if tags matter, Purushottam Pujari. He is on record. He is himself a lawyer, a successful lawyer, an elderly senior man, a soft-spoken, outspoken of course, and not necessarily within quotation marks radical kind of person, but a person who is honest and honest to his profession and to his people and to what he professes as values of his profession.
he is on record saying, and he has even filed a case with the High Court saying that Kashimji was actually murdered, and he has all the documents. So it's not. It's a clear case of a Hindutva ideology, which is not merely the Hindutva ideology of people who felt that certain Muslims who they wanted to eliminate were being defended, but also a government, a state or a state department, which was in connivance with this kind of activity. It's not just in the case, as I said, it's not just in the case of Kashimji alone, but in various other cases also that the state has taken the initiative to protect the culprits and criminals. तुम लोग तरक्की नहीं किए हो, तुम लोग डाउन डाउन, तुम लोग फेल हो गए हो मारने वाले। फाइनल डे पे जब हम कोर्ट यूजुअली जैसे हम जाते हैं वैसे मॉर्निंग में गए थे और हम कुछ 5 साढ़े 5 के करीब हम लौटे वहाँ से। तो उसके बाद 3 दिन छुट्टी थी, तो हमने कहा कि हम लोग आज ऑफिस में लेट बैठेंगे क्योंकि 3 दिन छुट्टी थी। तो जब हम लौट रहे थे मैंने बोला कि जब उन्हें अपने उनके घर के पास छोड़ा, क्योंकि पहले उनका घर पड़ता है और उसके बाद हमारा ऑफिस होता था। तो कार से हम आए तो हमने उनको छोड़ा, तो हमने उसको पूछा कि आप कितने बजे आओगे। तो वो कुछ कहना चाहते थे और कार का दरवाज़ा बंद करते करते मुझे ऐसे बाय करके पलट के वो चले गए। कपड़ा वही ड्रेस में थे, काला और सफ़ेद में। तो जैसे चाय पानी पी के गए हैं अपने कमरे में, वैसे खाट पे लेटे हैं, वैसे प्यून आया। 6:20 पर प्यून आया है। बोले भाई क्लाइंट 3 आए हैं, 3 आए हैं, बस इतना ही वो कह के चला गया। तो जब ये बाहर निकले हैं तो मैं बोलती हूँ कि बाबू अभी मत जाओ, पसीना तुम्हारा सूखा नहीं है बेटा, तो कपड़ा हाथ मुँह धो, कपड़ा बदली करके थोड़ा लेट जाओ, जिसको बैठना हो बैठ के इंतज़ार करेगा और नहीं बैठना हो चला जाएगा। नहीं माने। 6:20 पर दरवाजे पर मेरा ना खतरा कब से मेरे दिमाग में रहता था, 9 बजे के बाद से। ये अभी दिन डूबा है तभी मेरा खतरा नहीं था। तो जालिम पहुंच गए, कुर्सी पर बैठने भी नहीं दिया और साइलेंस से मारे। जब फिर मेरा प्यून चिल्लाने लगा तो उसके ऊपर यहाँ पिस्तौल रखे, बोले कि ज़्यादा आवाज़, इतनी गाली दिया उसको, अगर यहाँ आवाज़ निकालेगा तेरे को शूट कर दूँगा। लोग चाहे होते तो बाबू क्या पकड़ नहीं लिए होते। उधर ही से गुजरा, कितनी दुकानें देखो, यहाँ दुकान, इतना सा रास्ता है। इस रास्ते में पूरा शटर खुला हुआ है कि क्या तुम्हारी आँख पर पट्टी लगा के खड़े हो? कोई चाहता तो हाथ 3-4 आदमी लग के हाथ पकड़ लिए हो, लेकिन नहीं। जब मेरा प्यून आया, अम्मी सर को गोली मारी, बस बाहर से ऐसी चिल्ला के केबिन से, और भागा फिर गया। उस वक्त मैं सो रहा था तो अचानक अम्मी आई और मुझे बताने लगी कि बेटा भाई पे किसी ने गोली चला दी, उठ के जाकर चलो। तो हम लोग घर से यहाँ पर आए और हम लोगों ने भाई को देखा। उनके 2 सांस थी सिर्फ, और आंखें आधी खुली हैं आधी छुपी हैं। और मैंने पानी डाला तो नहीं गया पानी। बैठी सहला रही हूँ कि अल्लाह, ये गोली मेरे सीने पर लगी होती पाक परवरदिगार, ये ज़ख्म कहाँ बर्दाश्त करूँ रब्बुल आलमीन। है मेरा बेटा, किसके सहारे तू मुझे छोड़ के जा रहा? अपनी माँ को, बूढ़ी माँ ने थी बेसहारा, एकदम बेसहारा मैं हो गई। किसके सहारे मुझे छोड़ा है? मेरे बेटे को जरा भी होश आवास नहीं था। 2 सांस सिर्फ आई है बस। यहाँ से पूरी बदन का जान निकल चुका था, यहाँ से 2 सांस आई। जैसे अम्मी ने आपको बताया कि अम्मी ने अपने गोद में लिया, पानी पिलाया, मैंने वो देखा।
फिर मैं वहाँ से भागा कुर्ला पुलिस स्टेशन। जहन, इंसानी फितरत, जहन काम नहीं कर रहा था उस वक्त मेरा। हॉस्पिटल लेके जाना है या पुलिस के पास जाना है, जहन काम नहीं कर रहा था उस वक्त। हॉस्पिटल जाऊं या कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मसला ऐसा हो रहा था। और मैं पता नहीं, एक अचानक जहन ये किया कि पुलिस स्टेशन भाग दो। और जब पुलिस स्टेशन गया, पुलिस के साथ आया मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन। जब तक अम्मी और हमारे पड़ोस के ऑफिस के पड़ोस के डॉक्टर और काफ़ी लोगों ने मदद की और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। So far as Shahid Azmi is concerned, I can only say that he was one of the biggest casualties for the legal fraternity, and not just for the accused persons who he represented, because he was a very talented lawyer and a very upcoming lawyer, and he used to handle a lot of these cases where the terror accused were arrested and falsely implicated, and he successfully handled a lot of matters. And even in the Ghatkopar blast case, we have worked together where he was also successful in getting his client acquitted. His area of work was much wider. It was not just merely he was a defense lawyer for a terrorist as it is being painted out, but he was a very strong defender of democratic rights. जहाँ जहाँ जामियत का ऑफिस है, जहाँ जहाँ जैसे कैलकाटा हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे में है, तो वहाँ की सब तरह के लिए लीगल एडवाइज़र एक ये बॉम्बे के लिए थे, लेकिन ये इतना इनिशिएटिव लेते थे, इतनी कि ऑफिस से भी कांटेक्ट में रहते थे, दिल्ली के भी रहते थे, कलकत्ता के भी रहते थे, और वहाँ के जितने लोग हैं जो भी लीगल एड प्रोवाइड करना है, जो लॉयर्स अरेंज करना है, वहाँ के एरिया के लॉयर्स होते थे, उनसे मीटिंग लेना, कोऑर्डिनेशन करना और फ़ीस का स्ट्रक्चर जो डिसाइड करना था, वो सब वो शाहिद ही करते थे। वो हर तरह के केस लड़ रहे थे, हाई प्रोफाइल से लेके वेरी वेरी हाई प्रोफाइल से लेके वेरी वेरी लो प्रोफाइल तक। अगरचे वो चाहते तो कसाब का केस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गौर किया, फिक्र किया, उन्होंने गौर किया, फिक्र किया, तब जाके फ़हीम अंसारी का केस लिया। पहली बात तो उन्हें लगा था कि कोई लॉयर ये मैटर लेगा नहीं, तो कन्विक्शन पक्का था, तो हमने वो डेयरिंग की थी। और हम जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह से हम पुलिस डिपार्टमेंट को या जो भी विटनेस होता था, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, जो भी विटनेस आता था, वो पुलिस का हो या कोई और हो, हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से उसको क्रॉस करते थे। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो रिकॉर्ड पे आती थी बराबर से। तो इस वजह से एक कहीं अनरेस्ट था, कहीं ना कहीं उन लोगों को आपस में ये था कि भाई ये केस छूट जाएगा, ये तो एक चिढ़ थी उन लोगों को, थोड़ी सी चिढ़ इन द सेंस कि जहाँ उन लोगों ने जो सोचा था कि कन्विक्शन होगा इस चीज़ को, जहाँ वो एक्विटल के स्टेज पे आ गया, तो एक लाजमी है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा किसकी। 2004 अप्रॉक्स का वाक़या है ये। रवि पुजारी ने ये धमकी दी थी, द क्लोज एसोसिएट ऑफ बंटी पांडे हु वॉज रिसेंटली अरेस्टेड फ्रॉम वियतनाम। उस दौरान उसने ये धमकी दी थी कि तेरा पत्ता बिक चुका है, मेरे लड़के तेरे घर भी देख चुके हैं। मैं सोचा था कि तू बहुत बड़ा अमीर लॉयर होगा, लेकिन तेरा घर देख के तो नहीं लगता कि तू इतना बड़ा लॉयर है, फिर भी तुझे मारने के लिए क्यों बोला गया। जैसे उनके लिए नॉर्मल था, उनको आते थे, अक्सर उनको आते थे, कोई कोई इनडायरेक्टली कहता था, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी उनको इनडायरेक्टली कहते थे कि भाई आपको ये ऐसे मैटर्स आप क्यों लेते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। तब भी वो कंटिन्यू करते रहे, उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो अक्सर उनको कहीं ना कहीं ये था कि ये जो मैटर्स वो ले रहे हैं उसका अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे इस मामले में। उनका एक बार मतलब ऐसा था कि बहुत काफ़ी परेशान थे, अपने घर से निकले, मैं उसी रास्ते से जा रहा था बाहर की तरफ, अपने गेट की तरफ, तो उन्होंने मतलब सलाम दुआ किया, मुझे रुकाया, और जो चेहरा उनका जो उतरा हुआ था और उनको जो फीलिंग थी कि यार मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, क्योंकि मेरे पास सेंसिटिव केसेस होने की वजह से और जो बेगुनाह लोगों की जो मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरे को एजेंसियों से खतरा महसूस होने लगा। Naushad Kashim Ji,
and Shahid Azmi were killed in a similar fashion. Both were resting at their respective homes after court work when they were called out by the killers, pretending to be clients, and were then shot. Henchmen of the two underworld dons, Ravi Pujari and Bharat Nepali, were each charged for the murders respectively. It is also alleged that they, along with their mentor Chota Rajan, are backed by the intelligence agencies to operate against international fugitive Dawood Ibrahim and other targets. Due to this proximity, many suspect the involvement of rogue elements of Indian establishment in these two killings. Both the lawyers were given a tough time to the police. Beating, intimidation, and other kinds of harassment of lawyers defending terror cases is also on the rise in various parts of the country. ये कोर्ट के सीरियल ब्लास्ट 3 जगहों पर हुए, वाराणसी, फैज़ाबाद और लखनऊ। ब्लास्ट होने के फ़ौरन बाद ये आने लगा कि इंडियन मुजाहिदीन के लोग हो सकते हैं या फौजी के लोग हो सकते हैं, और उसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इसके बाद होता ये है कि आपके तारिक कासमी आजमगढ़ के निवासी, जिनको आपके एसटीएफ के लोग अपहरण करके आजमगढ़ से ले आए, और खालिद मुजाहिद को आपके मड़ियाहू से उनके घर से पकड़ के एसटीएफ ले आती है। जो ब्लास्ट हुए 23 नवंबर को, उसी दिन सारी कचहरियों में, बल्कि फैज़ाबाद अयोध्या में जो ब्लास्ट हुआ था उसी दिन सारी जगहों के बार एसोसिएशन ने फैसला ले लिया कि कोई एडवोकेट इन मुकदमों की पैरवी नहीं करेगा। चूँकि प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए कोई जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। मैं उसी के सिलसिले में फैज़ाबाद की कोर्ट में आता हूँ। पहले सीजीएम की कोर्ट में, सीजीएम फैज़ाबाद की कोर्ट में, जब एटीएस के जो आईओ थे राजेश श्रीवास्तव, उन्होंने ब्रेन मैपिंग के लिए एप्लीकेशन दिया, तो उसका ऑब्जेक्शन लेकर के मैं कोर्ट में आया, कोर्ट में दाखिल किया। यहाँ के जो कुछ वकील थे जो चाहते थे कि कोई उनके मुकदमे न करे लोगों के, उन्होंने पीछा किया, लेकिन जैसे मुझे खबर मिली मैं वहाँ से निकल भागा। इसके पहले शोएब साहब इस मुकदमे में आए थे, लेकिन उनके भी साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, वो चले गए। तो पावर में जब मैंने फाइल किया तो सौरभ मिश्रा उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये बहुत गलत काम किया। इसके बाद जो है मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ध्वनिमत से फैज़ाबाद बार एसोसिएशन सदस्यता से मुझे निकाल दिया गया। सारे राइट्स मेरे जो थे वहाँ से ख़त्म कर दिए गए, और दिनांक 16/6/2008 को दिन में लगभग 3 बजे जनरल सेक्रेटरी मंसूर इलाही के नेतृत्व में, जिसमें संजीव दुबे भी थे, करीब 100 अधिवक्ताओं ने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद मुझे धमकी दी, थ्रेटनिंग दिया, और मेरा तख्ता और कुर्सी उठवा ले गए। 4 अप्रैल 2008 को फिर मैं सीजीएम की कोर्ट में गया। सीजीएम ने कहा कि भाई आपको जो एप्लीकेशन देना हो दे दीजिए और चले जाइए, नहीं तो अभी फिर घेर लिए जाएंगे आप। वही मैंने किया। फिर ये सेशन कमिट कर दिया गया केस। सेकंड एडिशनल सेशन जज एक गौतम साहब थे, उनके सामने गया ये केस। 30 अप्रैल उनके यहाँ डेट लगी। मैं हाजिर हुआ पहले, और उनसे मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ जो है मेरे लिए ख़तरा है मुकदमा करने के लिए आने पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके और केस को ट्रांसफ़र करवा लूँ कहीं दूसरी जगह, और इसमें आप ऑब्जेक्शन ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ख़तरा कहाँ, कैसे ख़तरा है। ये वही बात चल ही रही थी
कि ख़तरा सामने आ गया। सैकड़ों की तादाद में वकील कोर्ट से बाहर नारे लगा रहे थे। पुलिस फोर्स रस्सा लेकर के एक बैरिकेड बना करके उनको रोक रही थी। तो नीचे पुलिस थी, काफ़ी लोग खड़े थे, भीड़ थी। हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर चले गए तो उसके बाद नीचे से करीब 150-200 वकला साहिबान ऊपर पहुंच के और उन्होंने बड़ी बदसलूकी के साथ मारो मारो मारो, मार डालो मार डालो मार डालो मार डालो करने लगे। और मुझसे कहा गया कि मैं जज की चैम्बर में जाकर के अपनी पनाह लूँ। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पीछे से भी वकील आ रहे हैं और वहाँ भी बच नहीं पाएंगे। शोएब साहब को मैंने देखा कि वकील साहब जा रहे थे तो लोगों ने काफ़ी भद्दी भद्दी बातें कहीं और मार डालने की धमकी दी और बढ़े भी, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। इसी तरह से खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी का केस बाराबंकी में, वहाँ भी पैरवी, चूँकि वही लोग थे, मुझे ही करना थी। बार बार मुझे घेरा गया, घेर करके पहले वापस कर दिया जाता रहा, लेकिन 17 अगस्त को जब घेरा गया तो मुझसे बलपूर्वक मेरा वकालतनामा विड्रा कराया गया। मोहम्मद शुएब साहब 2-3 बार पहले भी गए थे और ये असफल होकर लौटे थे। उसके बाद जब हमने इंटरफेरेंस किया तो उस दिन चूँकि हम लोकल वहाँ के एडवोकेट थे तो काफ़ी धींगा मस्ती करना, टांट करना, हल्ला मचाना, बोलने न देना, पकड़ के जो है आपके इधर सुनिए उधर सुनिए। कोई वकील जो है कहता था हमारी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, ये तुम्हें मेरी कसम, हिंदू धर्म की कसम और देश की कसम, इस तरीके से आपके करीब 15-20 मिनट तक जो है ये कवड़िया बाजार मचा रहा था। और उसके बाद जब हम लोग निकल आए हैं एक झटके में, ये सब डेट करा के, तारीख करा के निकल आए, तो उसके बाद तखत के ऊपर शुरू हुआ कि आपके 20 लोग आके बैठ गए, हाँ भाई ये केस आपको नहीं करना है। और एक साहब हैं कासिफ चौधरी साहब, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था आपके पहले दिन जब मैं उपस्थित हुआ विरोध करने वाले लोगों से कि साहब ये आप क्यों कर रहे हैं, अगर इन्होंने लगा दिया तो होने दो। तो कम से कम 6 महीने तक उनके तखत के आसपास लोग बैठ जाते थे, 15-20 वकील दूसरे तख्तों के ऊपर, और उनकी माका डाका करते थे। लखनऊ में जहाँ से मैं खुद संबंध रखता हूँ, मेरी पूरी वकालत लखनऊ की ही है, वहाँ मेरे साथ और ज़्यादा ख़तरनाक खेल हुआ। 5 अप्रैल 2008 को वकीलों के एक ग्रुप ने जा कर के सीजेएम की कोर्ट में कहा कौन वकील है जो इन लोगों की पैरवी करने के लिए आया है, उसको पकड़ो मारो। उस दिन तो मैं बच करके चला आया और मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों ने विरोध किया था। शुरुआत तो लखनऊ बार ने की थी आतंकवाद के खिलाफ। उस समय मैं लखनऊ बार का कार्यकारिणी सदस्य था, पूरी बार हमारे साथ थी। उसमें मेरा भी पावर था किसी की तरफ से, 2-4 लोगों की तरफ से, लेकिन मैं कई पेशी से अटेंड नहीं कर रहा था वो केस। उसमें शोएब साहब एडवोकेट आते थे। उस दिन ये वाक़या हुआ कि वो लोग मुलजिम वहाँ से कस्टडी में यहाँ कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहे थे, और कुछ लड़के एडवोकेट्स जो ज़्यादातर बालाजी एसोसिएट्स एडवोकेट्स उनकी है, वो करीब 15-20-30 लोग वही लोग थे। वो लोग नारेबाजी करते हुए उनके पीछे, उनको मारने के लिए, उनको घेरने के लिए वो लोग पीछे, उनके पीछे यहाँ कोर्ट नंबर 2 तक आ गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मैं भी देखने गया, अपने चैम्बर से आगे बढ़ा, जब तक कि वो लोग सब नारेबाजी करते हुए इधर आ गए, हमारी तरफ आ गए जहाँ पे मैं खड़ा था। बस हमको मारने पीटने लगे, लात जूते घुसे, गिर गया मैं, लातों से जूतों से मारने लगे। और यहाँ पे आचार्य एडवोकेट है, बगल में बैठता है, इसने बचाने की कोशिश की तो इसको भी मारा उन लोगों ने, और कहा कि कच्चे हमको धमकी दी मार करके। उसके बाद गेट के बाहर हमको कराए
और कहा कि अगर वकालत करोगे, कचहरी आओगे तो तुमको जान से, तुम्हारे परिवार को हम लोग जान से मार देंगे इन लोगों की वकालत करोगे। तो मैंने कहा मैं इन लोगों की वकील नहीं था, मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। 12 अगस्त की जो तारीख आई उसमें अंजू गुप्ता एडवोकेट हैं जो मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करती है, उसके हाथ से मैंने इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र भिजवा दिया कोर्ट में कि ह्यूमन राइट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके जो डायरेक्टिव्स हैं वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं और ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु के केस में जो डायरेक्टिव्स इशू किए हैं उनके आधार पर पुलिस को ये डायरेक्ट कर दिया जाए कि वो इन मुलजिमों को हथकड़ी में कोर्ट में न पेश किया करे। 11 बजे वो एप्लीकेशन पहुंची, मैं करीब 1 बजे कोर्ट में ख़ुद पहुंचा अपने और जूनियर्स के साथ में, और यही करीब 1:15 या 1:30 बजे रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता मैं, कि 20, 25 या 30 की तादाद में वकील थे। वो आए, पूछा, फिर जैसे वहाँ पूछ रहे थे कौन वकील है, उस दिन मैंने कह दिया हाँ मैं हूँ। तो मुझे कोर्ट के रूम में ही, उस वक्त जिस बैठे नहीं थे अपनी कुर्सी पर, इन लोगों ने वहाँ भी मुझे गिरा करके मारा और काफ़ी चोट पहुँचाई। 13 अगस्त को फिर उसी टाइम पर करीब वही ग्रुप जिसने 12 अगस्त को मेरे ऊपर हमला किया था मेरे चैम्बर में पहुंचा, मुझे घसीटा, मेरी चेयर से घसीट करके मेरे चैम्बर से बाहर लाए। शोएब साहब को बहुत मारा उन लोगों ने, उनके चैम्बर में घुस करके उनका कपड़ा फाड़ दिया, कोट फाड़ दी, बैंड फाड़ दिया, बहुत मारा पीटा और उनको लाद करके 4-5 लोग टांग करके बाहर फेंक दिया ले जा करके। बैंड जो एडवोकेट की पहचान होती है उसको नोच डाला गया, मुझे पटक दिया गया, पटक करके फिर उठाया गया और पूरी कचहरी में तमाशा बनाया गया डिमॉन्स्ट्रेट करके, और मुझसे ये कहा गया कि नारे लगाओ हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। वकील हम लोग के भाई हैं, हम लोग उनका कोई विरोध नहीं करते हैं। निवेदन के तहत हम लोग निवेदन करते हैं कि कोशिशें हो कि आतंकवाद की पैरवी ना हो। हम लोग अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। आराम से। सफदर नागौरी और उसके 13 साथी इंदौर से पकड़ा गए थे। उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंदौर के पास पीतमपुर के पास किसी गांव में इन्होंने कैंप लगाया था और वहाँ पर इन्होंने बम विस्फोट करे थे और ट्रेनिंग दी थी विस्फोट करने वगैरह की, इस प्रकार का आरोप उस पर लगा था। गिरफ्तारी के बाद में इनको धार चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में पेश किया गया। उसी दौरान धार बार काउंसिल की तरफ से एक बयान आया अखबार में कि ये जो मुलजिम पकड़ाए हैं इनकी कोई धार का वकील पैरवी नहीं करेगा, ये प्रस्ताव पास करा है, और अगर बाहर का वकील आएगा तो उसको भी पैरवी नहीं करने दी जाएगी। सन 2008 में 11 अप्रैल को हम धार गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी ये बीजेपी के युवा संगठन के, आरएसएस के, बजरंग दल के काफ़ी युवक आ गए थे। 15-20 लोग मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बताया वही उज्जैन से आया हूँ। तो कहने लगे किस लिए आए हो। मैंने कहा कि सिम्मी के लोग पकड़ाए हैं, इनकी पैरवी के लिए आया हूँ मैं, उनके परिवार के लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ धार का ना बाहर का कोई वकील कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको रोकने का कोई हक नहीं है मुझे, और मैं पैरवी करूँगा। जब मैंने इतना कहा तो उन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया।
उन्होंने साहब वकील साहब को कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ही मारा। उसकी मीडिया कर्मी ने शूटिंग वगैरह भी की, उसकी वीडियो फिल्म भी उतारी और वो फिर पुलिस को बताई भी और पुलिस ने कोई केस बनाया नहीं उनके खिलाफ। उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी लात घूंसे मारे, धक्के दिए, मेरा कोट पकड़ लिया, ये कंडीशन बना दी कि मेरे को अधमरा कर दिया था। दूसरी बार गए, दूसरी बार भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार किया गया, ऐसे ही उनके साथ ज़्यादती की गई। 2-2:30 बजे मैं कोर्ट से निकल के ने ऑटो स्टैंड है करीब 100-150 फीट दूर, वहाँ ऑटो में बैठने के लिए गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट से ही कुछ लोगों ने टेलीफोन कर दिए थे उन लोगों को जिन्होंने पहले हमले करे थे। जैसे मैं ऑटो स्टैंड के पास पहुँचा, चारों तरफ से 8-10 लोगों ने मेरे ऊपर एकदम से हमला कर दिया और लात घूंसे मुक्के इस कदर मारे मेरे को, मैं ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद भी लात मारते रहे। मैंने अनवर साहब वकील साहब हैं इंदौर में, उनसे मिला। उनसे मैंने कहा कि आप तो इस मुकदमे को धार से दूसरी सिटी में ले जाने के लिए पिटीशन लगा दें। मुलजिमान की तरफ से मैंने हाई कोर्ट में सेक्शन 407 CRPC के अंदर पिटीशन लगाई कि केस को ट्रांसफ़र कराया जाए। इसमें हमने उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों को भी पार्टी बनाया था। हालत ये रही कि जब तारीख पेशी पे उनको नोटिस भेजा गया युवा संगठन को, बीजेपी के लोगों को, तो उन्होंने हाई कोर्ट पे आके प्रदर्शन करा, वहाँ पर अनवर साहब को भी परेशान करा। एक दिन जब वो जवाब के लिए पेशी लगी थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा को उनकी पेशी तारीख थी, कोर्ट के अंदर नहीं थी, ऑफिस में थी हाई कोर्ट के, तो झुंड बना के आया, जुलूस बना के आया और फिर पुलिस ने पूरा कॉरिडोर कर दिया था, पूरी प्रोटेक्शन किया था कि किसी को कुछ गड़बड़ शड़बड़ नहीं हो, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला था। इसलिए उन्होंने नारेबाजी की है, ये किए वो किए, सिर्फ जवाब पेश, वकील पद पेश करने के लिए, जवाब के लिए भी नहीं, वकील पद पेश करने आए ऐसे झुंड बना के। तो यहाँ भी उन्होंने यही कोशिश की कि टेरर क्रिएट किया जाए और कोई उनकी पैरवी नहीं करे। मेरा तो 23/1/2008 पे थोड़ा ये एक्सीडेंटल ये हो के स्लिप हो के मुझे रिब्स कट हो गए थे, 2 रिब्स। उसके बाद आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर अप टू 28.2। डिस्चार्ज हुआ तो घर पे मैं रेस्ट कर रहा था, 1 महीने का रेस्ट था कंप्लीट। तो उसके बाद देखे तो 6th इवनिंग मुझे फ़ोन आ गया, एक थेफ्ट केस में एक वकालत डाल रहा है और एडवोकेट के भतीजा है बोल के। मैं बोला तो मेरा हालत ये है, मैं नहीं आ सकता। वो टाइम में सीनियर एडवोकेट इंजर्ड थे एक्सीडेंट के, इसमें वो एडमिट थे। तब मेरे हाथ में वो वकालत थमा दिए, मैं वो ले जाके सबमिट किया कोर्ट में। एट दैट टाइम द केस इज एडमिटेड एज ए 41D ऑफ CRPC थेफ्ट। ये मेमो साइन करके उनको देके एडवांस करने को भेज दिया। जैसे ही मैं यहाँ से निकला तो डॉक्टर से मिलने गया था, डॉक्टर से जाके मिल के 3 बजे तक घर पे गया तो टीवी में ऑलरेडी मेरे खिलाफ आ गया। सडनली 2 दिन के कि आई थिंक 2 दिन हॉलीडे आ गए। ये हॉलीडे दिन में पेपर में आने लगा दे आर टेररिस्ट कर बोल के। हम भी हैरान हो गए, हमको तो थेफ्ट केस बताया गया था एज पर रिकॉर्ड्स। या अचानक ऑर्गेनाइजेशन वो संडे गिंडे पेपर में आने लगा। मंडे देखते फिर वो कन्वर्ट हो गया, मेमो डाले वो टेररिस्ट है, ऐसा है, वो संगठन से मिल गया, वो गया कर बोल। रोज़ तो हमारे कोर्ट कैंपस में एजिटेशन चलते रहे, ये रहते हैं टीवी में, मीडिया में, सभी आता रहा, सब कुछ चलता रहा। इसके बावजूद भी मैं रोज़ ऑफिस आके 2 बजे तक बैठ के उसके बाद निकल जाता था। मुझे तकलीफ हो तो भी आके बैठना पड़े मुझे इनके एजिटेशंस के खिलाफ। बार एसोसिएशन वाले भी दबाव दिए हमारे, और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन वाले, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन 3-4 ऑर्गेनाइजेशन वाले दबाव डाले, स्ट्राइक निकाले और पेपर स्टेटमेंट डाले। हमारे ओन एडवोकेट्स कलीग्स तुमको देख लेते हैं, तुम भी टेररिस्ट है। और वो होने के बाद मेरे घर पे अटैक किए मिडनाइट, 20-30 लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले विथ इलेक्ट्रिसिटी निकाल के नाइट में।
पत्थर फेंके बिल्डिंग के ऊपर, सीमेंट सीट पूरे फूट गए। और नेक्स्ट डे फ़ोन कॉल आने लगे, आई हैव लॉड्ज द कंप्लेंट बिफोर द कंसर्न पुलिस स्टेशन, बट टिल टुडे देर आर नॉट शक्यूर दी एनी अफेंडर्स। इंसिडेंट के दिन जो है 2:10 या 2:15 आई लेफ्ट दिस ऑफिस. When I was on the way to my house, in between only I received a call that fire is going on. 2 सेंट्रीज लगाए थे उधर, 2 पुलिस सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी रहते भी आंच लग गई उधर ऑफिस में। का तो है तुम ना डराने का, स्टेट वे तो अटैक नहीं कर सकते थे, डराने का वो करते ये करते, उधर आंच लगाए, डोर को आंच लगाए ऑफिस के हमारे सीनियर के। सभी भी पुलिस इन्वॉल्व रहने में चाहिए, सभी होते हैं, नहीं तो अदरवाइज। Naturally, when you are doing pure defense work, means you are doing pure labor to see that people are out rather than in, then you invite the ire of the administration. 2 or 3 years back, we were getting regular threats, and I had, through the commission of inquiry, I had got a police case also registered. They were the threats were primarily during the time when the first lot of officers were arrested in the Sohrabuddin encounter. So in all probability there were some hands from the police hand also involved. In November 2003, 2 things happened. Once somebody came here, I sit till late night. In fact, till 2 a.m., 3 a.m. I used to work. So somebody came as if posing himself to be a client, he wants some to hand over some matter, and then he came here and started talking of all such nonsense that NGOs are minting money, you people are being used as a scapegoat and all that. And then he started threatening that sometime you will be done to that. So don't do all this kind of work. And so I didn't entertain. Then while leaving my office, on that day I left bit earlier, so it might be around 12 or so, midnight. So I found that person standing down even after say half an hour of his leaving. And then he took out some weapon, and then I immediately drove my car. When I took on this assignment before His Lordship Justice V. Bhaskar Rao, I was told by people who were apparently, I'm not aware, they say that they were eyewitnesses, but they were not willing to come and give evidence. They were apprehensive. I was told that I was a fool, I was taking on something which was huge and which would pit the police force against me. In fact, one person went to the extent of telling me that there is a rumor that there might be an encounter staged. The state administration, the state machinery is involved. And the very active, visible state machinery is the police force. And the cop who files the charge sheet dreaming about his promotion. And you put a spoke in the wheel, he doesn't get what he wants. So you're not the best of your friends. 2004 के अंदर एक एक्यूज था फिरोज खान, उसको जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसके बारे में मैंने कोर्ट से कुछ बातें बताई कि भाई इसको इतने दिन से इलीगली डिटेन किया हुआ था और इसको बहुत मारा गया है। उसके बाद वो एक्यूज ने भी कंप्लेन की बिफोर कोर्ट कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसे पेश आए। जब मैं कोर्ट से बाहर निकला तो मेरे को कहा गया एसीपी की तरफ से कि आपको डीसीपी क्राइम आना है, कुछ आपसे सवाल जवाब करने हैं। नेक्स्ट डे सैटरडे था। सैटरडे को जब मैं मुलाकात पे जाता जेल पे, एवरी सैटरडे में मीटिंग करता था एक्यूज़ के साथ, तो वहाँ पे जब अंदर जो एक्यूज़ थे उन लोगों ने मेरे को बताया कि आपके लिए सुबह में भी डीसीपी क्राइम के कुछ पुलिस वाले आए थे और ये बता रहे थे कि इलियास भाई को ले जाने का है। मैं जब बाहर निकला उन लोगों ने मेरा पीछा किया, मेरे पीछे उनका अपने व्हीकल लेके आए और कुछ दूरी तक आने के बाद उन लोग
फिर हमको दिखाई नहीं दिए। जो हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी के नाम से जो है मीडिया में मशहूर हुआ, जिसको अजीम साहब मैं शुरू से फर्स्ट डे ऑफ जो है अरेस्ट से उसके अंदर डिफेंस लॉयर हैं। फर्स्ट डे ऑफ अरेस्ट से नहीं, अलबत्ता उससे पहले जो है इलीगल कस्टडी से उसको जो है, जो लड़कों की इलीगल कस्टडी थी वहाँ से जो है हम लोग उन लोगों के डिफेंस लॉयर्स हैं। उनके जो है रिट्स फाइल किए और जो है टेलीग्राम्स करे, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें हुए। तो उसके अंदर कई एक एक्यूज़ को बने। जब एक्यूज़ नंबर 22 जो है तकरीबन एक 6-8 महीने 10 महीने के नहीं अबाउट 1 साल के बाद जो है A22 अरेस्ट हुए। तो जब A22 के जो है अरेस्ट हुए, उनको जो है मजिस्ट्रेट के घर पे पेश करे, तो मैं गया मजिस्ट्रेट के घर पे जो है, मजिस्ट्रेट जब पेश करे तो जो है मिला कर एक्यूज़ से, और जो है वो फॉर्मेलिटी होने के बाद जब वापस रिमांड रिपोर्ट लेके वापस आ रहा था तो सरसरी देख रहा था, तो उसमें जो है एक्यूज़ मेरे को भी जो है इसके अंदर 198 में एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ बोल के लिखा हुआ था। उस टाइम पे मेरे जो लॉयर एक हमारे सीनियर लॉयर थे HN झाला, मिस्टर HN झाला, उनने मेरे लिए बहुत लड़े थे। तो वो एडवोकेट को उसके बाद फॉरेन कोटा में डाल दिया था। 2001 से लेकर 2002 तक की जो मेरी यानी ये सब थी कि उनकी बात नहीं मान के भी मैंने इन लोगों का केस लड़ने का चालू रखा, और हर मरतबा यानी पॉलिटिकल यहाँ के हमारे जो थे उनको भी गाइडलाइंस देता रहा ये भी। तो उसकी वजह से उन्होंने एकदम मुझे हिट लिस्ट पे ले लिया था, और ये 2006 के अंदर उनकी बात नहीं मानने की वजह से मुझे 2 केस में फंसाया गया। एक आर्म्स के 2002 के पहले का आर्म्स के कोई केस में जाहिद खान करके जो हमारे कोई एक उनको निकाला और उनके रिमांड लिए, और ऐसा बताया कि इन्होंने रिमांड में कबूला है कि भाई ये पेंडिंग जो केस था 2003 में हुआ था, उसमें बोले कि ये लोग थे और इनका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, फ़ोन पर धमकी तो खैर पुलिस वालों की मिली है मुझे, वकीलों की तो नहीं मिली है। वकीलों से तो यही सुनने मिला कि करोड़ों रुपए आतंकवादियों से कमा लिया हमने। There was vigilance here down the chamber where I stay there as to why I'm not feeling nervous about it, who's coming to make the payments, how the payment is being made. So I had once told a police officer, the payments are being made in a bank in Switzerland. कोई ख़ास घटनाएं तो मेरे साथ ये जो बोला यही हुई है, जैसा कि फ़ोन टैप हो जाना है, या पीछे किसी का आ जाना, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या कोई ज़ाती ख़ास एडवोकेट मिलके बोलना ये केस क्यों ले रहे हैं आप, और पुलिस ऑफिसर्स भी जो है कभी इस तरह के जो है हमको बोलना कि केसेस मत लो वरना मुश्किल हो जाएगा, आपके फ्यूचर को प्रॉब्लम होगा, अब बाद में प्रैक्टिस में आपको नुकसान होगा। इस तरीके की बातें अक्सर होते रहते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है जुडिशरी में भी हमको मौका मिलता है, जैसा कि कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या किसी ऑफिसर का पोस्ट, तो ये केसेस अगर लेते हैं आप तो वो चांस आपको नहीं रहता है। There are manners in which the state operates. You suddenly find clientele drying up. You suddenly find you are appearing in courts, you are not getting your orders, but on the same sale fact, others are getting the same orders and you are watching them do it and get it. They advised me that don't take more than 1 or 2 matters, otherwise your career will be spoiled, you will be branded as a lawyer for Muslims. अगर मैं जा रहा हूँ तो लोग बड़ी सस्पिशन की निगाह से देखते थे, और कि लोग बताते भी थे कि ये आतंकवादियों के वकील हैं, ऐसा कहते थे। There goes the terrorist. Look at his zaat. Arey, he will not defend, then who will defend? In Bengali they would say, "Dak dak ke jacche," or "Jatta dak Musalman." We have been trying to persuade the special investigation team appointed by the Supreme Court to investigate into the criminal conspiracy during the 2002 riots, because it is a not just a mere allegation, but it is a very important public perception that large number of politicians, ministers, police officers were directly involved. Either they connived or by inaction they permitted the riots to take place. This application we filed before the SIT through one victim called Dildar and one of the member of our organization, Amrish Patel. The persons who were defending the accused of the Naroda Patia case, they in the cross examination tried to bring out that Dildar, who is an illiterate victim of the Naroda Patia, he did not know the entire application because it was written in English, and words were put in his mouth.
The complaint that has been filed is by one Mr. Premchand Tiwari, who is actually an accused of the Naroda Patia case, and he is on bail at the moment. And he has filed this complaint against myself, then Mr. S.H. Iyer, Mr. Amrish N. Patel, Sohail Tirmizi and Shamshad Khan Pathan. All are advocates who have been appearing in some case or the other, but in the present case we have actually not appeared as advocate at all. Here the thing is, an application has been given to Bar Council by an accused who is actually in jail. So he is a murderer, he is not an innocent person. He gives an application saying that this particular witness has said that in High Court some petition was filed, some application and affidavit was filed. That was not prepared as per his say. Now, assuming everything to be true, he really didn't know, because there was another applicant, Mr. Amrish Patel, who knew everything. No, absolutely no allegation can be made against us because we were not involved, but very detailed application has now been filed with the Bar Council demanding that our sanat should be cancelled. These are all tactics to browbeat the lawyers appearing for victims, so that we may get scared, we may stop fighting the cases and defend the witnesses. And ultimately witnesses would get so discouraged that they might kneel down before the accused. Under the Advocates Act, the Bar Council of India has the power and the jurisdiction to lay down rules of professional conduct and etiquette. And following the English practice, we have a statutory rule which is taught to every law student that no lawyer shall refuse to defend a person on the ground that he believes him to be guilty, or on the ground that many other people believe him to be guilty, or that the accused is a very unpopular person, or that it will cost the lawyer his own popularity or some other inconvenience in defending him. Lawyers take up a case, they don't look the ideology, they don't look the personality of the party, they are really concerned with the evidence on record and the relevant provisions of law under which the man is charged, and he will argue that no, he can't be charged under this particular section, or the evidence is not sufficient to warrant a conviction. Any society, if it is seen that there is no justice or no law and order or no rule of law is not adhered by the very government which it has promised or instituted the laws, then the business community would begin to wonder if their investments are safe in a country which does not have a sound judiciary. Defense counsels in a criminal case is a necessary evil to establish the rule of law in this country. You can't boast of that our country is the one of the best democratic country in the world unless you maintain the rule of law and defend people properly. Independent judiciary is the bedrock of any democracy, and if India is seen as not adhering to its democratic values, it would have very long, deep impact on India's aspiration to be a global power. It is vying for, or it claims to have, which in my opinion India should have a permanent Security Council seat, but if it is seen as not having
a independent judiciary are not valuing its democratic ethos or democratic values, then its credibility is undermined, and that will have impact when it comes to a global opinion whether India should become a permanent Security Council member or not. When a lawyer appears in such matters, and where the ruling classes or the people who are the stronger side, they are directly affected, one of the easy method, in fact that's I would call it the soft belly, is the defense lawyer, because he is an individual. We presume they are professional individuals. So if you can get rid of him, scare him off, make him run, then they succeed. I am fighting those kind of people, those kind of offenders. So ultimately, their aim would be to attack, obviously. Don't get nervous, don't panic in face of threats. Of course, it's easy for me to say so. They may sometimes feel, what about my family, other things? What are? After all, human beings are there. But defense is, if you are taken up a defense, please don't let the accused down. What my husband was working for the people, there should not be end for that. If one has gone, there are many hundreds and thousands who will be coming up. So that has to be continued. I am proud to be what I am. I am proud to be an Indian. I am proud that this is my country, the best country in the world. And ये नहीं है कि मैं explanation दे रहा हूँ. I am being apologetic. No, I am proud to be a defense lawyer, and I am ready to go and fight for my client till the last of my breath. हम अगर डर जाएंगे तो देश को बर्बाद करने में ये मशीनरी और आगे आएगी. इसलिए मैं तो कहूँगा कि चाहे जितना डराया जाए, निडर हो करके ही हमें इस रास्ते पर चलना होगा. Recently I got through two threat calls pertaining to two incidents. One incident pertaining to the Yusuf, who is facing around more than 19 cases, that is major serious offences. Should I? Yeah. He was introducing himself that I am the main accused. I am the murderer of Vaman Rohi. And then he was saying that why you are taken that this Yusuf's case. He is not an ordinary criminal. He is a terrorist. We are following up him that his whatever activities that Yusuf murder case. Yusuf. He has killed all the innocent persons. We also committed murder. We also killed so many persons. Yes. How much he is paying? Double amount I will pay. More than that I will pay. You drop that matter. I replied him that so though if I dropped him, even government has to appoint one lawyer for him. Even also, Kasab also, he was saying that Kasab also provided one lawyer government by the government. But you don't handle it. I inquired with all the public. I got very good opinion on you. Yes. Yes, Kasim ji,
was handling that terrorist case, we killed him. Like so, we are also you will be also killed.